Hello students, welcome to live classes. I hope you all are doing well. So students, today we will do the question answers of Wonderful Ways class 5th Marigold. Okay, take out your copies. Wonderful waste. Chapter 2. Word meaning. Okay. Our first word is quiet. And the meaning is enough. ENOUGH. In Hindi, we will say kafi. Okay. Next, feast. FEAST. The meaning of feast is a large, special meal, especially to celebrate something. ठीक है, in Hindi we will call it dawat. Feast means dawat. Next word, survey. 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 Survey means examine. EXAMINE. ठीक है, in Hindi we will call it सर्वेक्षण करना. सर्वेक्षण. Next, scraps. 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 Scraps meaning waste material. Waste material. In Hindi, रद्दी चीज़ें. ठीक है. नेक्स्ट, 5th number, commanded. Commanded means to tell or order somebody to do something. ठीक है. इन हिंदी, किसी को कुछ करने का आदेश देना. ठीक है, किसी को कुछ करने का आदेश देना. नेक्स्ट, sternly. STERNLY. Sternly means in a serious manner. MANNER. in Hindi, कठोरता से. कठोरता से. Okay. Next, staring. STARING.
G. Staring. Staring means to look at somebody or something for a long time. ठीक है. In Hindi we will call it किसी को या किसी चीज़ को देर तक देखते रहना. ओके. टू लुक एट somebody और समथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. किसी को या फिर किसी चीज़ को देर तक देखते रहना. नंबर 8. टेम्पटिंग. TEMPTING. Tempting means attractive. Attractive. In Hindi we will say ललचाने वाला. Last word eager. 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 Eager means strongly wanting to do or have something. उत्सुक. In Hindi उत्सुक. Okay students, look here one time more. Quiet means enough, kafi. Feast means a large special meal, specially to celebrate something. Dawat. Survey, examine. सर्वेक्षण. स्क्रैप्स, वेस्ट मटेरियल, रद्दी चीज़ें. कमांडेड. टू टेल और ऑर्डर somebody to do something. किसी को कुछ करने का आदेश देना. sternly, in a serious manner, कठोरता से. staring, to look at somebody or something for a long time. किसी को या किसी चीज़ को देर तक देखते रहना. tempting means attractive, ललचाने वाला. eager, strongly wanting to do or have something. उत्सुक. Okay, next we will do question answer. Okay, open your copies and books. Okay, now reading is fun. Question number 1. What were the preparation in the palace for? ठीक है, उस महल में, उस राजभवन में किस चीज़ की तैयारी चल रही थी. There were the
preparation for a grand feast. Feast means dawat in the palace. ठीक है, वहाँ पे किस चीज़ की तैयारी चल रही थी? बहुत भव्य सा वहाँ पे क्या होने वाला, दावत होने वाला था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. Why did the Maharaja go into the kitchen in the afternoon? Why did the Maharaja go into the kitchen in the afternoon? जो वो राजा था, जो महाराजा था, वो किचन में दिन के समय क्यों गया था? एज यू ऑल नो, वो वहाँ पे जो डिशेस, जो व्यंजन वहाँ पे जो पकवान पक रहे थे उनका सर्वेक्षण करने वो गया था. ओके, राइट. द महाराजा went into the kitchen to examine the dishes that had been prepared for the grand dinner. Okay. The Maharaja went into the kitchen to examine the dishes that had been prepared for the grand dinner. Okay. जो महाराजा था वो किचन में जो रात के खाने की तैयारी चल रही थी, जो डिशेस पक रही थी, उनका सर्वेक्षण करने वो किचन में गया था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. What had the cook planned to do with the vegetable scraps? स्क्रैप्स मीन्स रद्दी चीज़ें. ठीक है, तो जो कुक था, जो रसोइया था, उसका क्या प्लान था? जो वेजिटेबल के छिलके थे, जो भी रद्दी चीज़ें थी वेजिटेबल्स की, उनके साथ वो क्या करने वाला था? ठीक है, आंसर, द कुक had planned to throw the vegetable scraps. ठीक है, जब महाराजा पूछने आए किचन में कि आप इन वेजिटेबल के स्क्रैप्स का क्या करोगे, तो राजा का कोई प्लान नहीं था. वो उसको क्या करने वाला था? उसको फेंकने वाला था. अब नॉर्मली हम लोग भी क्या करते हैं, जो वेजिटेबल्स की जो चीज़ें होती है लाइक छिलके, कुछ भी चीज़, रद्दी चीज़ें, हम क्या करते हैं? उसको फेंक देते हैं. तो कुक का भी यही प्लान था कि वो जो रद्दी चीज़ें हैं उनको क्या करेगा? फेंक देगा. ठीक है,
Okay, now open your books. Question number 4th. Ingredients are the things that आर यूज टू मेक अ डिश. इंग्रेडिएंट सामग्री. ठीक है, कोई भी डिश बनाने के लिए हमें अलग अलग सामग्री चाहिए होती है. सर्कल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ अवियल इन द बॉक्स बिलो. ठीक है, अभी हमें यहाँ पे एक बॉक्स दिया है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इंग्रेडिएंट्स हैं. ठीक है, हमें जो अवियल बनाने के लिए हमने चैप्टर में पढ़ा था, हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है उसमें हमने सर्कल करना है. ओके, चिलीज. Yes, we need chilies. Groundnuts, no. Wood, no. Vegetable scraps, yes, we need vegetable scraps. Coconut, yes, we need coconut. Roasted peanuts, no. Curd, yes, we need curd. Pot, yes, we need pot also. Garlic, yes, we need garlic. Next, broken angles, no. Basket, no. Last, curry leaves, yes, we need curry leaves to make अवियल. ओके, हमें अवियल बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होगा. चिलीज चाहिए, वेजिटेबल स्क्रैप्स चाहिए, कोकोनट चाहिए, कर्ड चाहिए, पॉट चाहिए, गार्लिक चाहिए एंड करी लीव्स चाहिए. ओके, नेक्स्ट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. ठीक है, हमें अब बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है. द किंग हैड ऑर्डर्ड अ डिनर इन द पैलेस. यस, द किंग हैड ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर इन द पैलेस. ट्रू. नेक्स्ट, नो वन हैड हर्ड ऑफ और टेस्टेड अवियल बिफोर. ठीक है, जो कुक ने अवियल बनाया था ना तो उसके बारे में किसी ने पहले सुना था, ना ही उसको टेस्ट किया था. यस, ट्रू. द कुक हैड प्लान टू मेक अनदर डिश यूजिंग द वेजिटेबल स्क्रैप्स. ठीक है, जो कुक का प्लान था कुछ अलग डिश बनाने का वेजिटेबल स्क्रैप्स का. नहीं, कुक का क्या प्लान था, उसको फेंक देने का. तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया. ओके, नेक्स्ट, अ रेसिपी इज अ लिस्ट ऑफ डायरेक्शंस टू प्रिपेयर अ डिश. ठीक है, रेसिपी मीन्स किसी भी डिश को बनाने की जो विधि होती है उसको हम क्या कहते हैं, रेसिपी कहते हैं. ठीक है, तो किसी भी डिश को बनाने की जो एक विधि होती है, ठीक है, उसमें डायरेक्शन होता है कि आप ये यूज़ करो, फिर ये डालो, फिर ये डालो. ठीक है, द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर नॉट इन ऑर्डर फॉर प्रिपेयरिंग अवियल. ठीक है, हमें यहाँ पे बहुत सारे सेंटेंस दिए हैं, तो ये जो सेंटेंस है वो ऑर्डर में नहीं है. ठीक है, कि हमें पहले ये करना है, पहले ये करना है, तो ये ऑर्डर में हमें इसको करना है. नंबर देम इन द करेक्ट ऑर्डर. इनको हम करेक्ट ऑर्डर में डालेंगे. ओके, सबसे पहला हमें दिया हुआ है वॉश एंड क्लीन द मिक्स ऑफ वेजिटेबल्स बिट्स. ठीक है, जो वेजिटेबल्स के छोटे छोटे जो टुकड़े थे उनको हमने क्या करना है, वॉश करना है, देन क्लीन करना है. देन कट द वेजिटेबल स्क्रैप्स इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स. ठीक है, जो वेजिटेबल स्क्रैप्स हैं उन्हें हमें लंबे लंबे टुकड़ों में काटना है. तो दिस इज नंबर 2. थर्ड, ग्राइंड सम कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक. ठीक है, हमें कोकोनट, ग्रीन चिलीज और गार्लिक को पीसना है. तो दिस इज थर्ड. फोर्थ, whip some curd and mix it in. ठीक है, हमने दही को फेंटना है और उसमें मिक्स करना है. तो दिस इज फोर्थ. देन फिफ्थ, pour some coconut oil on top. ठीक है, हमने उसके टॉप पे कुछ चम्मच कोकोनट ऑयल डालना है. तो दिस इज फिफ्थ. सिक्स्थ, डेकोरेट विथ करी लीव्स. ठीक है, लास्ट में जो इसको किससे डेकोरेट करना है, किससे सजाना है, करी लीव्स से. तो दिस इज सिक्स्थ. एंड द लास्ट, अवियल इज रेडी. अवियल अब क्या हो गया है, तैयार हो चुका है. नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन इन द बॉक्स आर सम थिंग्स दैट चिल्ड्रन डू आफ्टर दे रीच होम फ्रॉम स्कूल. ठीक है, हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें बॉक्स में दी गई हैं, तो
इनमें से हमें चूज़ करना है कि मतलब वो चीज़ें चूज़ करनी है जो चिल्ड्रन जब अपने स्कूल से घर में पहुंचता है तब वो क्या करता है. ठीक है. चूज़ 5 थिंग्स दैट यू डू व्हेन यू रीच होम फ्रॉम स्कूल. राइट देम इन ऑर्डर. ठीक है. फर्स्ट आई, सबसे पहले क्या करेंगे? पुट अवे स्कूल बैग. ठीक है. ये अलग है. ओके. I put away school बैग. ठीक है. सबसे पहले जो भी बच्चा स्कूल से घर आता है तो अपना बैग क्या रख देता है. ठीक है. देन आई चेंज्ड आउट द स्कूल यूनिफॉर्म. फिर क्या करता है वो? अपने स्कूल यूनिफॉर्म को चेंज करता है. आप लोग भी करते होंगे ना. द स्कूल यूनिफॉर्म. नेक्स्ट आई, फिर क्या करते हो आप लोग? वॉश अप. ओके. फिर आप हाथ मुंह धोते हो ना. नेक्स्ट आई वॉश अप. आफ्टर दैट आई हैव लंच. दिस इज 2, this is 3, this is 4. I have lunch. ठीक है. Finally, I what do you do? बताइए. I do the homework. फिर आप क्या करते हो? होमवर्क करते हो. I do the homework. Okay. Next, page number 14. Let's talk. The Maharaja was a wise man and ordered the cook to use the vegetable scraps instead of throwing them away. ठीक है. जो महाराजा था बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था, इसीलिए उसने उस कुक को ऑर्डर किया कि वो उन जो वेजिटेबल स्क्रैप्स है उनको फेंकने के बजाय उनका यूज़ करे. नेम सम ऑफ द थिंग्स विच आर थ्रोन अवे एट होम और इन स्कूल. ठीक है. ऐसी कुछ चीज़ें बताइए जिनको आप क्या करते हो स्कूल में या फिर अपने घर में फेंक देते हो. क्या क्या फेंक देते हो आप लोग? लाइक आप लोग जैसे आपकी कोई पेन खाली हो जाती है, इंक ख़त्म हो जाती है तो आप लोग क्या करते हो? उसको फेंक देते हो. और क्या होती हैं? और पेपर्स को फेंक देते हो. ठीक है. सिट इन ग्रुप्स ऑफ 4 एंड थिंक of interesting ways in which they can be made useful. अब आप लोग ग्रुप में बैठना. अब ग्रुप में तो बैठ नहीं सकते. ठीक है. तो आप लोग अपने घर में अपने पेरेंट्स के साथ ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें, ठीक है, जो आप फेंक देते हो, वेस्ट चीज़ें, वेस्ट मटेरियल से कुछ इंटरेस्टिंग या कुछ यूज़फुल चीज़ बनाने की कोशिश करिए. पुट अप योर फाइंडिंग्स ऑन द क्लास बोर्ड. ठीक है. आप जो आप चीज़ बनाओगे आप लोग आप लोग क्या क्या बना सकते हो? आप लोग पेन रखने वाला एक बॉक्स बना सकते हो या कुछ फ्रेम बना सकते हो. ठीक है. आप लोग ये सब चीज़ें वेस्ट मटेरियल से बना सकते हो. ठीक है. आप लोग ये अपने घर में अपने पेरेंट्स के साथ या अपने बड़े भाई बहनों के साथ कोशिश करेंगे इसको बनाने की. ओके. नाउ वर्ड बिल्डिंग, पेयर वर्क. सम वर्ड्स हैव मोर देन वन मीनिंग. ठीक है. एज यू ऑल नो, कोई भी एक वर्ड होता है उसकी एक से ज़्यादा मीनिंग होती है. फॉर एग्जाम्पल पॉइंट. ठीक है. मीनिंग्स नाउन. ठीक है. डॉट इन प्रिंट और राइटिंग. ठीक है. पॉइंट मीन्स कोई डॉट. ठीक है. लिखते समय हम कुछ डॉट देते हैं उसको पॉइंट कह सकते हैं. फुल स्टॉप को भी डॉट कहते हैं, पॉइंट कहते हैं. डेसिमल को भी पॉइंट कहते हैं. द नंबर यू स्कोर इन अ गेम, उसको भी हम पॉइंट कहते हैं. ओके. तो इसका वर्ब क्या हो गया? वर्ब मीन्स क्रिया. नॉन मीन्स संज्ञा. ठीक है. नॉन मीन्स संज्ञा, वर्ब मीन्स क्रिया. ठीक है. अब जो पॉइंट है उसका नाउन वर्ड्स तो हमने जो जो संज्ञा होती है वो सब हमने पढ़ लिया.
अब वर्ब क्या होती है, क्रिया क्या होता है, पॉइंट मतलब टू शो और कॉल अटेंशन टू समथिंग, ठीक है। हम किसी चीज़ के प्रति हमने अपना अटेंशन दिखाना है या कुछ मीन्स उससे रिलेटेड जो अटेंशन दिखाना होता है उसको क्या कहते हैं हम, पॉइंट, ठीक है। लुक अप द फॉलोइंग वर्ड्स इन द डिक्शनरी, दे मे हैव मोर देन वन मीनिंग, लिस्ट दीज मीनिंग्स, ओके। अब हमें यहाँ पे वर्ड्स दिए हैं, अब हम इसका जो नाउन और वर्ब इसकी मीनिंग क्या होती है हमें वो लिखना है, ओके। फर्स्ट वर्ड इज ग्राउंड, ठीक है, एंड फॉर नाउन, ठीक है। ग्राउंड का नाउन होगा द सॉलिड पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस, और वर्ब होगा टू फिक्स समथिंग, to fix something strongly, strongly, ठीक है। नॉन मतलब होता है अर्थ की कोई सतह, उसको हम क्या कहते हैं, ग्राउंड, ठीक है। अर्थ की सतह को हम ग्राउंड कहते हैं। वर्ब मीन्स होता है टू फिक्स समथिंग स्ट्रांगली, मीन्स किसी भी चीज़ को कठोरता से फिक्स करना, ठीक है, सुनिश्चित करना या ठीक करना, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड है सर्वे। सर्वे मीन्स होता है, नाउन मीन्स होता है अ शॉर्ट समरी, ठीक है, छोटा सारांश। अब वर्ब मतलब होता है टू लुक ओवर केयरफुली, ध्यान से किसी चीज़ को देखना। नेक्स्ट इज स्क्रैप। स्क्रैप मीन्स नाउन मतलब होता है वेस्ट मटीरियल टू थ्रो, ठीक है, फेंकने वाली रद्दी चीज़ें। अब इसका वर्ब क्या हो गया, वर्ब मीनिंग है टू डिस्पोज और थ्रो वेस्ट मटीरियल, ठीक है। इसके आगे का ये वेस्ट मटीरियल, नाउन होता है वेस्ट मटीरियल टू थ्रो, ठीक है, फेंकने लायक रद्दी चीज़, और वर्ब हो गया किसी भी रद्दी चीज़ को फेंकना, ओके। स्टर्नली मीन्स होता है नाउन स्ट्रिक्ट कठोर, ठीक है, STRICT स्ट्रिक्ट। वर्ब होता है सीवियरली सिंपल, बहुत ज़्यादा सामान्य, ठीक है। टेम्पटिंग का नाउन मीनिंग होता है हाईली अट्रैक्टिव। वर्ब होता है टू इनवाइट और टू अट्रैक्ट। हाईली अट्रैक्टिव मीन्स बहुत ज़्यादा लुभाने वाला, ठीक है। टू इनवाइट बुलाना, किसी को बुलाना, या फिर उसका वर्ब मीनिंग होता है किसी को बुलाना या फिर किसी को ललचाना, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं। ग्राउंड का नाउन मीनिंग होता है द सॉलिड पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस। वर्ब मीनिंग होता है टू फिक्स समथिंग स्ट्रांगली,
ठीक है। सर्वे मीन्स होता है, सर्वे का नॉन मीनिंग होता है अ शॉर्ट समरी। वर्ब मीनिंग होता है टू लुक ओवर केयरफुली। स्क्रैप का नाउन मीनिंग होता है वेस्ट मटेरियल टू थ्रो, और वर्ब मीनिंग होता है टू डिस्पोज और थ्रो वेस्ट मटेरियल। ओके, टू डिस्पोज और थ्रो वेस्ट मटेरियल। नेक्स्ट, स्टर्नली। स्टर्नली मीन्स, स्टर्नली का नॉन मीनिंग होता है स्ट्रिक्ट। वर्ब मीनिंग होता है सीवियरली सिंपल। ओके, टेम्पटिंग मीन्स, टेम्पटिंग का नॉन मीनिंग होता है हाईली अट्रैक्टिव, और वर्ब मीनिंग होता है टू इनवाइट और टू अट्रैक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज। Make new words by adding, dropping a few letters from the root word. Some are done for you. ठीक है, अब हमें जो यहाँ पे ed, ing, er, est यहाँ पे हमें वर्ड्स दे रखे हैं। ठीक है, एडिंग वर्ड्स या ड्रॉपिंग वर्ड्स कहते हैं इसको। तो हमें इससे कुछ न्यू वर्ड्स बनाने। ओके, तो जहाँ पे हमें क्रॉस दिया मीन्स कि उस वर्ड के पीछे er या est या कुछ भी जो यहाँ पे दे रखा है वो नहीं लगता है। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड इज पाउंड। पाउंड, पाउंडेड, पाउंडिंग, POUNDING, पाउंडिंग। नेक्स्ट, ट्राई, ट्राइड, ट्राइंग, TRYING, ट्राइंग। नेक्स्ट, न्यू, न्यू ईयर, newest, NEWEST, newest. Next, oh sorry, here is large. large का larger और largest. Next is new, new year और newest. Next, tasty, tasted, tasting, tastier और tastiest, tastiest. Next, wise, wiser, wisest. Stare, stared, staring, 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 staring. Clean, cleaned, cleaning, cleaner, cleanest. ठीक है, do any one of these words use all of 4 endings. ठीक है, जो हमें यहाँ पे वर्ड्स दे रखे, एंडिंग वर्ड्स दे रखे थे, तो ऐसे कोई वर्ड है जिनके चारों के 4 बने? ठीक है, हाँ बने। कौन सा है? फर्स्ट इज टेस्टी, देन क्लीन। राइट इट हियर, टेस्टी और क्लीन। देख लेते हैं कैसे बना। टेस्टी का टेस्टेड, टेस्टिंग, टेस्टियर, टेस्टीएस्ट। क्लीन का क्लीन्ड, क्लीनिंग, क्लीनर, क्लीनेस्ट। ओके, नेक्स्ट, फाइंड आउट। नेम फूड दैट इज मेड इन योर होम। ठीक है, ऐसे खाने का नाम बताओ जो तुम्हारे घर में बनता है। फॉर अ फीस्ट या फेस्टिवल, या किसी दावत के लिए, या फिर किसी उत्सव के लिए, या किसी त्योहार के लिए। बताइए क्या बनता है? खीर बनती है आपके घर में भी, पूरी या हलवा। ठीक है, When you are unwell, ठीक है, जब आप बीमार होते हो तब क्या बनता है आपके लिए आपके घर में? खिचड़ी बनता है ना, खिचड़ी। एवरीडे, अब हर रोज क्या बनता है? रोटी,
चावल, सब्जी, दाल। ठीक है, शेयर द इंफॉर्मेशन विद योर फ्रेंड्स। अब जो ये इंफॉर्मेशन है आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करेंगे। ठीक है। अवियल इज अ डिश मेड इन केरला। ठीक है, जो अवियल नामक जो व्यंजन है, जो पकवान है, जो डिश है, वो कहाँ बनता है? केरला में। डू यू हैव अ सिमिलर डिश इन योर स्टेट मेड फ्रॉम अ मिक्स ऑफ मैनी वेजिटेबल्स? ठीक है, आपके स्टेट में भी ऐसा ही कुछ बहुत सारे वेजिटेबल्स से बना हुआ कोई डिश है? वट इट इज इट कॉल्ड? आपके स्टेट में ऐसा कोई डिश है तो आपके स्टेट में उसको क्या बोलते हैं? जैसे केरला में क्या बोलते हैं? अवियल बोलते हैं। तो आपके स्टेट में क्या बोलते हैं? इन उत्तराखंड हम बोल सकते हैं मिक्स वेज। ओके, मिक्स वेज बनता है आप लोग के घर में। नोट डाउन द इंग्रेडिएंट्स यूज टू मेक इट। ठीक है, अब आप लोग अपने पेरेंट्स की हेल्प से जो इस चीज़ में, जो मिक्स वेज बनाने में सामग्री यूज़ होती है, आप लोग उसको लिखेंगे। ओके, राइट डाउन द रेसिपी। इंग्रेडिएंट्स के बाद आप रेसिपी लिखोगे। जैसे हमने अवियल बनाने की रेसिपी पढ़ी थी ना, वैसे आप मिक्स वेज बनाने की रेसिपी को भी लिखोगे अपनी फेयर कॉपी में। प्रेजेंट एट्रैक्टिवली एंड डिस्प्ले ऑन द क्लास बोर्ड। यू कैन ड्रॉ और स्टिक पिक्चर्स टू। ठीक है, अब आप जो वो रेसिपी लिखोगे, जो इंग्रेडिएंट्स लिखोगे, उसके बगल में वो उसकी फ़ोटो भी चिपका भी सकते हो, बना भी सकते हो। ओके, और आप लोग उसे अपने घर में उसको सजा भी सकते हो। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग को आज की जो क्लास में हमने पढ़ा वो सब कुछ समझ में आया होगा और आप लोग उसे अपनी कॉपी में लिखेंगे। ओके, लिखने के साथ साथ उसे लर्न भी करेंगे। ओके, दैट्स ऑल। आप लोग अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।